Dear friends, guys, today we are going to start our constitutional value and fundamental duties, guys. जैसे कि हम जानते हैं कि आज हमारा पेपर हुआ था एनवायरमेंटल साइंस का एंड गाइस आई होप दैट कि आपका आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया हो एंड गाइस टुमारो इज आवर constitutional value exam. So guys, let's begin directly from this. All right. So guys, in this video we are going to complete all the chapters, all the important questions plus syllabus pattern. All right. So guys, let's begin from our first chapter. गाइस सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गाइस इसमें टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, टोटल 3 यूनिट्स है इसमें. ओके गाइस, लेट्स फर्स्ट रीड दैट 3 यूनिट्स अबाउट है कौन से यूनिट एग्जैक्टली. सो गाइस द फर्स्ट यूनिट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन. ऑलराइट, we are going to read federal republic, rule of law, separation of powers, sovereignty, socialism, democracy, socialism and सर्वधर्म समभाव. ऑलराइट. सो गाइस नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जहाँ पर हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज. ऑलराइट. सो गाइस लेट्स बिगिन डायरेक्टली फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड you can say Indian polity of constitutional. So guys, in this chapter we are gonna read the important points which is given below. सबसे पहले तो guys we are gonna read introduction पढ़ेंगे हम. all right. Next we will read salient features of the Indian constitution. After that we will read federal republic, then rule of law, then separation of power, sovereignty, socialism and democracy. Then we will read secularism and sarvadharm sambhav. Then we will read conclusion and some self-assessment question which is given below. So let's guys begin from this. Our first part which is intro part. So the constitution is a political instrument but it also aims to raise socio-economic standard so that people can live with honor and dignity. In the sense guys, जो हमारा constitution है, what is this? Guys, our constitution is a political instrument. Alright guys, in the sense we can say our constitution is totally like politics. क्या है guys? What is polity? Polity is like you can say राज्य व्यवस्था, or we can say supreme law of the country. Guys, constitution is also called the supreme law of the country. Guys, आपके एग्जाम में मे बी अगर ये क्वेश्चन आ गया दैट डिस्क्राइब अ ब्रीफ अबाउट सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. सो गाइज देन यू विल गोना यू कैन से कंफ्यूज टाइप. गाइज इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, डेफिनेटली कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली सुप्रीम लॉ इज. What is the meaning of supreme law of the country? So guys, the meaning of supreme law of the country is totally like constitution. In the sense you can say that guys, constitutional and constitution and supreme law both are alternative names. In the sense, supreme law of the country is the alternative name of constitution. In the sense ये इसका alternative name है. all right. We can call supreme law of the country also to this constitution. Alright, so guys, it also aims to raise socio-economic standard that people can live with honor and dignity. That's guys, socio-economic से हमारा क्या मतलब है? What is the meaning of socio-economic standard? is like society. Because इसका what is the aim? Guys, the aim is to raise society. Society अगर हमारी आगे बढ़ेगी, increase होगी, raise होगी, then people can live with honor and dignity. People एक तरह से वो प्राउड के साथ रहेंगे. alright. So इनका मेन पॉइंट क्या है? इनका मेन एक तरह से you can say what is the motive? Main motive you can say, main aim is like to raise our socio-economic standard for the people that can live honor and dignity. alright. So guys, it's a legal document lays for the 4 set guidelines. Here it's not so important. So here it is guys, total 100 amendments given below the Indian constitution. So now the guys directly come on our main point that what exactly Indian constitution is. guys book में जो लिखा है and मैं जो बोल रही हूँ मे बी इसमें कुछ difference होगा, but guys the main point is this what I am speaking. because
गाइस बुक में भी सेम वही है, बट हो सकता है कि बुक का लैंग्वेज somehow it's different and my language, my using of words is somehow different, so that's why I'm saying that. So guys, you should first of all listen to me that what I'm saying. You can read this book also and you can listen me also. So Indian polity is like, you can say, as I'm saying, the starting of the video, supreme law of the country. All right. Then, guys, there are certainly 3 branch which is given below. Here you can see the executive, legislative, and judicial branches of the government are fundamentally guided by the Constitution. The Constitution is effectively supreme. All right. So guys, in the sense, what is the work of these all branch? Guys, यहाँ पर जो हमारे 3 branch present है, legislature, executive and judiciary. Guys, these all 3 are, you can say, the main part of this constitution. So guys, what is the work? इनका काम क्या होता है? Guys, you can say the work of these all branches are to check the fundamental basic code, or you can say framework, democratic procedure, structure, power and duties of government and its organization and right and duties of the citizen. In the sense guys, ये तीनों branches हमें क्या बताती हैं? ये हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है that what is the procedure of constitution, इसका क्या प्रोसीजर है, power of constitution, duties of constitution, duties of government and you can say responsibility of government under the basis of constitution. constitution के बिहाफ पर गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन रही है वो हमें कौन बताते हैं? ये तीनों हमारे ब्रांचेस जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, हमें बताते हैं. ऑलराइट. एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, एक सिटीजन होने के और यू कैन से बिहाफ पर हमारा क्या राइट बनता है, हमारा क्या ड्यूटी बनता है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर they tell us. Alright, so guys, let's begin. Guys, the next point is that the Indian Constitution was created by the Constitutional Assembly. Indian Constitution को किसने create किया? In the sense was created by the Constituent Assembly के through ये create हुआ. Alright, which was elected by the people in July 1946 में ये elect हुआ था. So in the sense guys, the main point is that the constitution was drafted by the drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar. Alright guys, so guys ये लाइन सुनकर आपके माइंड में जरूर ये एक तरह से यू कैन से थॉट आया होगा that who was Dr. B.R. Ambedkar. We all know that इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. So what is the relation? What is the position of Dr. B.R. Ambedkar in our Indian Constitution? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका क्या पोजीशन रहा, इन द सेंस उनका क्या रोल रहा? So guys, he was the drafting committee chairman, you can say. all right, because जो हमारे ड्राफ्टिंग कमिटी उन्होंने ही ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो वहाँ के चेयरमैन थे. ऑलराइट, द चेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was Dr. B.R. Ambedkar. So guys, now the next point is that not the chair of Constituent Assembly, the chair of the drafting committee. all right, because Constituent Assembly के chairman हमारे थे Dr. Rajendra Prasad. all right, and the constitutional advisor to the Constituent Assembly is B.N. Rao, and the chief draftsman of the Constitutional Assembly हमारे जो chief draftsman थे वो थे I guess सुरेंद्र नाथ मुखर्जी. हेयर इट्स रिटन ऑल्सो सुरेंद्र नाथ मुखर्जी हमारे कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे. ऑलराइट, सो गाइस हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो ड्राफ्ट हुई थी ये कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 में इसे ड्राफ्ट किया गया था. एंड यू कैन से इट्स नॉट ड्राफ्टिंग टाइम, इट्स रेटिफाइड टाइम. ऑलराइट, सो उस टाइम इसे एक तरह से फुली कंप्लीट हो चुका था एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन, वो हमारे इफेक्ट में कब आया? 26 जन 1950 में हमारे इफेक्ट में आया. इन द सेंस
पब्लिक के सामने आया, सिटीजन सोसाइटी के सामने आया. कब आया? 26th of January 1950. The guys, this date is very much important. So that's why guys 26th जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? We celebrate Republic Day on 26th Jan. Alright? Guys, it's also a very much important GK question that Republic Day 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? Because उस दिन ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो अफेक्ट में आया था. ऑलराइट, इन द सेंस पब्लिक के सामने आया था. कब आया था? कौन सी ईयर में? 1950 के ईयर में. सो गाइस, इसे याद रखना है, इसे भूलना नहीं है. ओके, सो डोंट डेयर टू फॉरगेट. भूलने की हिम्मत भी मत करना. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सो गाइज, मैं चाहूँगी कि आगे बढ़ने से पहले हम एक बार छोटा सा रिकैप एक बार दोबारा कर लेते हैं. दैट व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड, असेंबली, और you can say branches, executive, legislative, judiciaries. So guys, let's recap. The constitution, guys, मेरे साथ आपको भी बोलना है. okay? If you are listening this video, then please speak with me, because while I am speaking, that you should also speak. आपको सिर्फ सुनना नहीं, आपको बोलना भी है, साथ में आपको लिखना भी है. You can write also. If your writing practice is not so good, then you can write. And if your writing practice is 100%, then don't need to write. Alright, it's up to you. बिकॉज मैं तो नहीं जानती कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसी है. ऑलराइट, सो आई जस्ट ओनली नो दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस फुल बुक इन वन शॉट. छोटे से छोटे पार्ट्स में हम इसे कंप्लीट करें. इन द सेंस वन शॉट में, बहुत ही छोटे वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इसे कंप्लीट करने की फुल. सो गाइस, लेट्स रिकैप अगेन. सो वेरी फास्टली, ओनली इन 2 minutes. सो the constitution is a political instrument, but it also aims to raise socio-economic standards. Socio-economic standards is like society, alright, so that people can live with honor and dignity. It is a legal document that lays forth a set of guidelines for how the nation will be governed. So guys, the main point is that the executive, legislative and judicial branches of the government are the fundamental guided by the constitution. Guys, कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या कहा गया है, क्या बताया था मैंने? रिमेंबर सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री कहा गया है. ऑलराइट, एंड गाइस, हमारे जो ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी है, इनका क्या वर्क रहता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ देम? गाइस, इनका वर्क रहता है to tell us about the procedure, power, duties of government, responsibility of government on the behalf of constitution and its organization, rights, duties of the citizen. क्या होना चाहिए एक सिटीजन का? ड्यूटी क्या होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनकी राइट्स क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमें बताता है. ऑलराइट गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन कब क्रिएट हुआ था? when रिमेंबर गाइस, हियर इज गिवन बिलो. सो गाइस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब क्रिएट हुआ था? इट वॉज क्रिएटेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसके द्वारा क्रिएट हुआ था? बाय किसके द्वारा लिखा गया था? द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. एंड गाइस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम. ऑलराइट गाइस, Dr. Rajendra Prasad was the chairman of the Constituent Assembly, and B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, and Surendra Nath Mukherjee, कौन थे? The chief draftman of the Constitutional Assembly. And who was Dr. B.R. Ambedkar? Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the Constitutional Assembly. Remember guys, don't try to forget. इसमें मिस्टेक मत करना. कंस्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी के बीच में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, हुज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, एंड which is a drafting committee, in sense you can say the constitution was drafted by the drafting committee. all right, and our constitutional assembly chairman कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. all right, I hope guys आपको ये 100% क्लियर हो गया होगा. अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपके माइंड में फिट हो चुका होगा ये ऑल पॉइंट्स. कब बना था गाइस? 26 जनवरी 1950 को ये हमारा सामने आया था, इफेक्ट में आया था. बट ये बना कब था? ये 9 दिसंबर 1946 एंड में ये हमारा कंप्लीट हो चुका था. कितना टाइम लगा था इसे बनने में गाइस? इस टाइम ये बनने स्टार्ट हुआ था, हेल्ड हुआ था. सो इट टुक देम 2 years 11 months 18 days लग गए थे इसे बनने में. कितना टाइम लगा था गाइस? द डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न द डेट. 2 years 11 months and 18 days लग गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में. ऑलराइट, टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन.
2 years, 11 months, 18 days. Remember guys, याद रखना है, इसे भूलना नहीं है. Alright, I hope guys that you will not forget this date. So guys, let's begin without wasting our time. So guys, here it is guys. First of all, this part is not so important, but as per knowledge basis, I will tell you this in a very short. So the salient features of the Indian Constitution, the preamble. We all the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure for all its citizens. In the sense, guys, it tells us about justice, social, economic, and political, plus liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, plus equality of status and of opportunity, and to promote among them all, and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. And in our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopting, enacting, and giving to ourselves these constitutions. Guys, you can say preamble का meaning क्या है? What is the meaning? Guys, it's totally about our India, in the sense हम इंडिया के people है, we the people of India, इंडिया के रहने वाले, we all. So in the sense guys, resolve to constitute India into a sovereign. Guys, हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो constitution है उसमें you can say क्या क्या present है. You can write this all. India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure for all its citizens. जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे सिटीजन्स के ऊपर उसका क्या अफेक्शन पड़ रहा है, सिटीजन्स को इन सभी चीज़ों से सिक्योर करने के लिए ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ है. ऑलराइट, रिमेंबर गाइस दिस पॉइंट. नाउ गाइस, लेट्स बिगिन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. Guys, here it is our written constitution. Guys, this is also not so much important, but only as for knowledge we will discuss, we will read this. So guys, written constitution. Like most of the modern democracies, the United States of America, Britain, Australia, France, Germany, and India to have a written constitution. इन सभी के पास written constitution है. Alright, remember this. It is true that Britain does not have a written constitution, and one more thing guys, Britain के पास written constitution नहीं है. Alright, and does not have any written constitution and does not have any written documents. In fact, सिर्फ written constitution ही नहीं बल्कि इनके पास written documents भी नहीं है. And now India to have a written constitution, इंडिया के पास भी written constitution है. गाइज, इसमें बस यही बताया है कि कौन कौन से कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, किस में नहीं है. इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. ऑलराइट, नहीं है तो क्यों नहीं है, होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, बट आर इंडिया में है, सो व्हाट्स द बिग डील. नाउ गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, तो गाइज जस्ट फॉर द नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में ये नहीं है. यू कैन से नो एनी डॉक्यूमेंट्स, नो एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द ब्रिटेन हैव. So now guys, here it is the next point, the longest constitution. India is known for its longest constitution. Guys, India को longest constitution कहा गया है. Maybe guys it will come in your exam, true false में आ सकता है. that is India actually called the longest institution? Is it true or false? इंडिया को लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा भी गया या नहीं. या फिर गाइज आपके ट्रू फॉल्स में ये भी पूछ सकता है दैट ब्रिटेन हैज रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स. ऑफ कोर्स गाइज ब्रिटेन के पास तो है ही नहीं, सो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा. और इंडिया को लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बिकॉज वो है, सो यहाँ पर हमारा ट्रू आ जाएगा. सो गाइज रिमेंबर दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो yeah, as its founding fathers have provided a detailed document that teaches on all aspects of the country's government system. Guys, the main point is that while the Constitution of the United States
has the shortest constitution, having only 7 articles. Guys, remember this. Guys, इसमें कुछ कुछ पास है जो कि आपको रिमेंबर होने चाहिए. Get that? The Constitution of the United States has the shortest constitution. Guys, longest constitution किसका है? इंडिया का है. एंड सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? यूनाइटेड स्टेट का है. और कितने हैं सबसे शॉर्टेस्ट में उसके कॉन्स्टिट्यूशन में? ओनली 7 आर्टिकल्स आर प्रेजेंट. रिमेंबर गाइस. While in fact the constitution of China has only 138 articles. China में भी only 138 articles ही present है. And the Canadian constitution has 11 parts, 147 sections, and in fact now one and only more important must be important that are one and only none other than India. The Constitution of India, however, originally had 395 articles यहाँ पर present है. Alright guys, totally 395 articles. Guys, very much important. Remember this, okay? So now guys, here the supremacy of constitution. So guys, supremacy of constitution के बारे में पढ़ लेते हैं. That what exactly this? Guys, supremacy of constitution. You can say that the constitution of India is supreme in the sense that it has been made clear in various cases interpreted by the Supreme Court from time to time. It takes proceedings over all of the other laws, institutions and business. In a sense, guys, you can say the constitution is the highest authority in the state. Or the next point is the constitution supremacy is the legal and political reality. Of course, ये legal भी है, political reality भी है. The constitution supremacy is binding and cannot be removed or revised. Of course, it is. Any law or conduct that goes against the constitution is invalid. कोई भी लॉ, कोई भी अगर कंडक्ट ऐसे होता है सो वो हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है सो वो इनवैलिड होगा. ओके. द कोर्ट्स कैन चैलेंज एंड स्ट्राइक डाउन एनी लॉ और कंडक्ट दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट डायरेक्टली उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते हैं अगर कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लॉ और कुछ भी ऐसा कंडक्ट करे तो. ओके, इन दैट सिचुएशन. So guys, that's how this is enough for the supremacy of constitution. Yeah, the main there is some important points also. You can say ensures that the constitution is directly expressed and prevents legislative enactments that go against the constitution and protect the certainly the constitution provide for the people. Guys, the main point is that only, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कोई भी सीनियर सिटीजन हो या फिर कोई भी सिटीजन, एनी सिटीजन्स, एनी लॉ और कंडक्ट दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड ही होगा वो. ओके, इन द सेंस गाइस, कोई भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लॉ केस कुछ भी ऐसे फाइल करता है सो इट इज कॉल्ड इनवैलिड. द मेन पॉइंट इज only this. Guys, directly come on our next point, which is, guys, first of all, coordination between parliament, supremacy, judiciary review, not so important. Fundamental rights, yeah, it's also, but it's not so important because before this we have to complete a lots of points. That's why here it's, guys, fundamental duties, local self-government. Guys, you can read this, it's not so much important बिकॉज गाइस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं ओनली वही इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. ओके, फेडरल रिपब्लिक. गाइस, बिफोर फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, very important point. It will definitely come in your exam and it will contain totally 5 marks. short notes में ये आने वाला है आपके एग्जाम में जो कि 5 marks contain करेगा. and guys, I will bet you that this rule of law will definitely come in your exam. That's I bet you. Okay, so guys, let's read that what exactly the rule of law
is. By the way, the rule of law, the mechanism, process, institution, practice, or norm that supports the equality of all citizens before the law. What it do? What is the work of this? Support the equality of all citizens before the law. Guys, you can see here, in simple word, you can see rule of law refers to the supremacy of the law of the land over any other elected representative or authority in a country. इसे सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ भी कहा गया है. ऑफ कोर्स रूल ऑफ लॉ को हम सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ भी कहते हैं. इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज which refer into a government guided by law and not men. The phrase has been interpreted differently by different people in different ways in different countries. Alright? So guys, here it is, some more points are given below. Supremacy of law. Supremacy of law, what is it? What denotes this? So guys, supremacy of law, it denotes the country's legal dominance को denote करता है ये, and absolute power. The law applies to everyone. जो law है वो सभी के ऊपर apply करता है, including those who are not citizens. Framing and administering the law, Dicey believe that whatever there is a scope for discretion, there will be arbitrariness. In the sense, guys, I will explain you in my very simple words. It means that the exclusion of the existence of arbitrators, a part of the government. Guys, you can say it's totally just like that. Yeah. Rule of law according to Dicey. Here it is. Yes. Guys, here it is our last point. You can read by. It is held that the law established in a court of law must be enforced throughout the land with no exceptions. No person has the right to impose law on themselves. Alright? Now, the next point is that equality before the law. Of course, equality होनी चाहिए. It's very much important point. This means that the law should be administered in just and a fair manner. Every person, whatever his position or rank may be, should be subjected on the same law and procedure as everyone else in the code of justice. Alright? He said every official from the prime minister down to the constable or a collector of taxes is under the same responsibility for every act done without legal justification as any other citizen. Alright? In the Indian Constitution, the right to equality is mentioned under Articles 14 to 18. में ये mention है that equality before the law and equal protection of the law prohibit discrimination on ground of caste, color, creed, sex and religion, equal opportunity regarding employment, abolition of untouchability and abolition of titles. So guys, that's how, and the main point, the next point is that yes guys, our फेडरल रिपब्लिक जिसका था हमें इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई. फेडरल रिपब्लिक के बारे में जानने का हमें मौका मिल गया. So guys, let's discuss that what exactly, let's read the Federal Republic is. Guys, in your exam this question may become that describe about Federal Republic. Alright, by the way, like the countries of Canada, Australia, Germany and United States of America, the farmers have provided a constitution for India. Although the Indian constitution resembles the Canadian constitution for India in several respects, it also has borrowed from other federations like Australia and in other United States. In India, there are dual sets of government. The power is divided between the center and the states. Again, in order to have harmonious relations between the center and the states,
In the seventh schedule, the power is divided by giving three lists like central, state, and concurrent. The supremacy of the constitution, independence of the judiciary, written constitution, and division of power are essentially federal characteristics that have also been adopted by the Indian constitution. इन द सेंस गाइज हमारा जो फेडरल रिपब्लिक है इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, इसे एक पॉलिटिकल सिस्टम कहा गया है वेयर अ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर पावर, जहाँ पर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पावर को शेयर करते हैं विद रीजनल गवर्नमेंट के साथ, एंड द पीपल थ्रू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन, जो हमारे पीपल्स है दे आर इलेक्ट टू मेक डिसीजंस, ओके, दे कैन मेक डिसीजंस एज पर देयर ओन माइंड, एज पर देयर ओन थॉट, ओन थिंकिंग्स, ऑलराइट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. इसमें गाइस जो पावर वो दोनों शेयर कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या दोनों. सो गाइस मे बी दिस डिफरेंशिएशन कम इन एन एग्जाम, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, यू शुड learn this, alright. So central government, the central government has a republican form of government and its powers are limited by law, okay. रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका जो पावर है वो भी लिमिटेड है लॉ से. बाय द वे द रीजनल गवर्नमेंट दे आर नॉट ब्रांचेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कैन नॉट टेक बैक देयर ऑथोरिटीज. ओके, इन्होंने एक बार जो ऑथोरिटीज जो इन्होंने बता दी वो उसे वापस नहीं ले सकते. दिस इज कॉल्ड रीजनल गवर्नमेंट, ऑलराइट. बाय द वे द डिवीजन ऑफ पावर्स जिनकी ये बात कर रहे हैं, जो पावर इन दोनों के बीच में डिवाइड होता है, डिवीजन किया जाता है जो पावर, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. बाय द वे द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट इज codified in a written constitution. In the written constitution में इसे बताया गया है that what exactly division of power is devised between the central and the regional government, all right. Federal republic are often larger, more populous and more internally heterogeneous than United States, where the central government retains many of the powers, alright. By the way guys, some examples of federal republics are given below. Here it is, you can read. No, here not, it's in the book I guess. Maybe it will no, not present. One problem guys, I am speaking, you can listen to me. So the examples are the United of Australia, Republic of Brazil, Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Federal Republic of Germany, Republic of India, United Mexican States, Swiss Confederation, alright. It is a form of government that allows for more than one central entity to have power. What this means is that there is a federal government who is above all others, and a smaller, more localized form of government that take control of local and regional issues. The idea behind this to be able to better suit the needs of each area of the country, but some issues certainly arise. And guys, that's how it's work. By the way, division of power, separate government, and some points are given below. Here it is. Written constitution, rigid constitution, special judiciary. And guys, some more points, a better understanding of local issues and demands, increasing citizen participation as a protection against tyranny. So guys, we will discuss this also, disadvantage and the advantage of federalism. But guys, this is not so important, but इसमें और भी बहुत सारे points given है, like you can say conflict of authority, रीजनलिज्म ओवर पैट्रियलिज्म, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज बिटवीन स्टेट एंड द ब्लॉकेज ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिसीज बाय स्टेट्स. गाइस, हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, बट इन आर ऑनर्स. जब हम सेमेस्टर हमारा कंप्लीट जाएगा, जब हम ऑनर्स में चले जाएंगे, सो अगर आपका ये सब्जेक्ट होगा देन इसके बारे में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, बिकॉज इन दिस बुक वी आर, यू कैन से, लोएस्ट लेवल. अभी हम काफ़ी शॉर्ट लेवल में है, सो दैट्स वाई हमें शॉर्ट कट में ही डिस्कस करना है, लॉन्ग कट में नहीं जाना. ओके, बट अगर आपको ये टॉपिक
करना ज़्यादा पसंद है, सो यू कैन रिसर्च. एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद से आप रिसर्च करो इसके बारे में, फुली रिसर्च करो. बिकॉज गाइस आई लाइक रिसर्च वेरी मच. इनफैक्ट आई लाइक ईच एंड एवरीथिंग टू रिसर्च अ लॉट. मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है. फिर चाहे वो कोई भी चीज़ मैं चाहती हूँ उसे फुली कंप्लीट करना, 100% उसे कवर करना. ऑलराइट. So guys, that's how Federal Republic completed. I hope that you like my explanation. So guys, let's begin further points. So by the way guys, जब हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, because due to lack of time and guys I am getting very much tired also due to speak a lot because guys actually माई माइक्रोफोन इज गेटिंग रिपेयर. अभी ये थोड़ी सी उसमें कुछ इश्यूज आ गई है, टेक्निकल इशू हो गई है. सो दैट्स वाई मेरा माइक्रोफोन चल नहीं पा रहा. मेरा जो माइक है वो एग्जैक्टली वर्क नहीं कर पा रहा है. एंड सो दैट्स वाई गाइज माई हैंड इज ऑल्सो वेरी मच पेनिंग ड्यू टू होल्डिंग दिस बिकॉज कैमरा स्टैंड इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल येट. सो दैट्स वाई. बाय द वे गाइज, लेट्स बिगिन फर्दर एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज sovereignty. Sovereignty guys, India is sovereign in the sense that the power rests with the people. Guys, let me explain this full sovereignty in a very shortcut form. So guys, we can say that sovereignty में हमारा जो point है, the idea that is, you can say sovereignty is the idea that a state or entity has the ultimate authority to make laws, manage its land and exercise power without external interference. It's a political concept that's closely linked to the ideas of democracy, independence and government. In the sense guys, you can say ये किस टाइप की विचारधारा होती है जिसके अनुसार किसी भी you can say राज्य, anything you can say जिनके पास स्टेट है, किसी भी एंटाइटी के पास कानून बनाने का एक you can say एक लास्ट एक होता है ना, अंतिम अधिकार होता है, लास्ट राइट होता है उनके पास लॉ को एक तरह से बनाने का. इन द सेंस अल्टीमेट ऑथोरिटी टू मेक लॉज, मैनेज इट्स लैंड, उसे मैनेज करने का, एंड एक्सरसाइज पावर विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के उन्हें एक तरह से यू कैन से होल्ड करने का, उन्हें बनाने का. ओके. एंड गाइज यू कैन से दैट हाउ सोवेरिग्निटी वर्क्स. इसका ये एग्जैक्टली काम कैसे करती है हमारी सोवेरिग्निटी. सो द सोवेरिग्निटी इज अ किंग और क्वीन हु हैज सुप्रीम पावर. सोवेरिन इज अ टाइप ऑफ, वो एक राजा और रानी है जिनके पास सुप्रीम पावर होती है. जस्ट लाइक दिस, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग यू. द पीपल होल्ड द सोवेरिन पावर which is exercised through representative bodies like कांग्रेस और पार्लियामेंट की तरह से होती है ये. ओके. इन डेमोक्रेसी के थ्रू अगर देखा रहे तो. सो और अगर हम इसे इंटरनेशनल लॉ के फॉर्म में देखें, सो सोवेरिग्निटी इज अ पावर अ स्टेट हैज टू एक्ट एंड इट इज लिमिटेड बाय इंटरनेशनल लॉ. ऑलराइट गाइस, there are some challenges also to sovereignty. This is external form which I am telling you. You can write in your exam if this come in your exam, if this topic sovereignty come in your exam, that describe or discuss about sovereignty. So that time guys you can write. So guys I hope that कि अब आपको थोड़ी सी क्लियर आ रहा हो, बिकॉज मैंने यहाँ पे गाइस फ्लैश लाइट ऑन किया है फ़ोन का. सो दैट्स वाई. एंड द कैमरा इज ऑल्सो ऑन. सो human right which limit the authority of governments to act within their borders. Economic globalization which constrains states' ability to direct economic development. Supranational institution which limit state sovereignty, you can say. Alright. Or guys, sovereignty is just like a jurisdiction. Okay. The alternative word of sovereignty is jurisdiction. Alright. And you can also say it is called the synonym of and the alternative names of sovereignty is independence, nature, dominance, freedom कह सकते हैं हम इसे. alright. So guys, that's how it's work. Now guys, I come on our second point, which is socialism. So guys, here it is our second point. So about socialism is available. So guys, as per my information, socialism
42 Act 42 Constitutional Amendment Act of 1976. Guys, you can say socialism is an economic and political philosophy encompassing diverse economic and social ecosystem. Social systems characterized by social ownership and of the means of production as opposed to private ownership, and it also describes economic, political, and social theories and movements associated with the implementation of such system. All right, so guys, the word is implementation of such systems. All right, guys, in a sense, in the simple word, you can say socialism is an economic system in which major industries are owned by workers. Major industries are owned by workers के थ्रू ओन होती है rather than by its private business में. Okay, it is different from capitalism where private actors like business owners and shareholders can own the means of production. आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर हुआ हो. सोशलिज्म जो हमारा जो पार्ट है वो 100% क्लियर हो गया हो. देन गाइस डेमोक्रेसी. सो गाइस डेमोक्रेसी को भी कंप्लीट कर लेते हैं. डेमोक्रेसी और गाइस, सो डेमोक्रेसी इज आवर लास्ट पॉइंट. सो गाइस democracy one simple means the government of the people and by the people. In other words, you can say the preamble declares India to be a democratic state. Okay, so preamble ने इंडिया को democratic state declare किया है. declare किया था. So by democracy, one simply means the government of the people and by the people. In other words, the people have to share in political power which they exercise through the representatives chosen by them. Here it is, guys. It's given. The universal adult franchise has been adopted in the Indian Constitution, and the single transferable voting system has been adopted in the election of the president and vice president and the members of Rajya Sabha. First, the post system has been adopted in the elections to the Lok Sabha and the Legislative Assembly. For this, a provision has been made for the Independent Election Commission to conduct free and fair elections. In this way, democracy has been successfully operated in India through elections from 1952 to date. Guys, I hope कि आपको डेमोक्रेसी क्लियर हुआ हो. एंड गाइज, अगर नहीं भी हुआ क्लियर, देन नो एनी प्रॉब्लम, आई विल मेक यू क्लियर वेरी सून. ऑलराइट गाइज. And guys, here it is. The last point is secularism and the Sarva Dharma Sambhav. So guys, we will discuss this part in our next video. Alright guys, and guys, in this video it's enough for, you can say, important points, important topics हमने discuss की. Guys, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें discuss की. And guys, काफ़ी time लगता है इसे explain एक तरह से, you can say, ready करने में, after that इसकी explanation देने में. And गाइज, आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर आपको मेरे अंदर थोड़ी सी वैसे मेहनत इम्प्रूवमेंट लाइक नज़र आई हो, सो गाइज मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी तभी आप लोग भी इम्प्रूवमेंट करोगे. बिकॉज अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, सो अगर मैं गलत बताऊँगी तो फिर आप कैसे सीख पाओगे. सो दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझ पर बिलीव करो. यू आर बिलीविंग ऑन मी बिकॉज and also you are while you are watching this video. So that's why guys, if you see any improvement on me, then please like, share, subscribe to my channel also. Don't forget to this. And yeah guys, that's all. So guys, let's meet directly on our next video. Then keep coming, keep learning, keep speaking, and keep being with me guys. अब मैं आपको next video में directly मिलूंगी. Next video guys, I will upload it very soon. Alright guys, so take care, bye bye. It's enough for the first lesson. Here I am come back again guys with new lesson. यूनिट नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. गाइस, बिफोर दिस मैंने फर्स्ट नंबर के ऊपर पहले ही वीडियो बना दी है गाइस. फर्स्ट चैप्टर पे यू कैन गो एंड चेक द वीडियो. एंड गाइस एक्चुअली मैं कोशिश करूँगी मैं उस वीडियो को इसमें ऐड कर पाऊँ. अगर मैं उस वीडियो को भी इसमें अगर मैंने ऐड कर दिया, सो दैट्स वेरी मच गुड, वेरी मच अमेजिंग. आपके लिए भी देखना काफ़ी इजी होगा. वन शॉट वीडियो अगर आ जाएगा तो फिर गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज, मैं एक बार चाहूँगी कि मैं पहले एक बार आपको रिकैप करवा दूँ बैक साइड कि हमने एग्जैक्टली क्या पढ़ा था. ऑलराइट,
सो गाइज लेट्स रिकैप अगेन। गाइज अब हम चैप्टर नंबर 1 को ओनली 5 मिनट्स में रिकैप करने वाले हैं। ऑलराइट, सो गाइज ईच एंड एवरी टॉपिक। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो मेन टॉपिक है वो गाइज कॉन्स्टिट्यूशन ही है हमारा। सो गाइज कॉन्स्टिट्यूशन मैंने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं उसे। और टोटल कितने ब्रांचेस होते हैं, टोटल 3 ब्रांचेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है लेजिस्लेचर। गाइज मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, इट विल easy to write, here it is। पहला कौन सा हमारा होता है, लेजिस्लेचर होता है। सेकंड नंबर कौन सा होता है गाइज, एग्जीक्यूटिव होता है, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस। गाइज हमारा थर्ड नंबर कौन सा होता है, या जुडिशियरी होता है, राइट। और राइट, सो इट्स जुडिशियरी। सो गाइज ये तीनों हमारे होते हैं ब्रांचेस। इनका काम क्या होता है गाइज, इन ब्रांचेस का काम होता है टेल मी अबाउट, आई मीन these branches tell us about the procedure, the power of the constitution, procedure of constitution, duties of government on the behalf of constitution, and its organization, responsibilities and rights and duties of the citizen in the behalf of the constitution। ये हमें बताते हैं। ऑलराइट, इन द सेंस ये इनका एक कहते हैं ना, एक तरह से मेन पार्ट, मेन हिस्सा जो कहते हैं ना, मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। किस किस में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या कहते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ऑलराइट गाइस, इसे भूलना नहीं है, ओके, डोंट फॉरगेट दिस, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो फर्दर। गाइस हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब क्रिएट हुआ था। सो गाइस कब क्रिएट हुआ था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टेल मी फर्स्ट। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल किसके द्वारा क्रिएट हुआ था, क्रिएट। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ऑलराइट, which was made up of Indians and began its work in December 1946, and the constitution was drafted by the drafting committee। और चेयर कौन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और राइट गाइज भूलना नहीं है, B.R. अम्बेडकर हमारे चेयरमैन थे। एंड गाइज हमारे जो यू कैन से ये कब बना था, रेटिफाइड कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। एंड 26 जनवरी 1950 को ये इन द सेंस अफेक्ट हुआ था हमारे सामने, कम इन टू अफेक्ट ऑन 26 जन 1950। ऑलराइट, जिसे हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइस यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एंड गाइस इसमें मेन पॉइंट ये है सुरेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में, जो कि है चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ हो। सो गाइज ये हमारे कुछ छोटे मोटे पार्ट्स हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग दैट, इसे बनने में कितना टाइम लगा था, हाउ लॉन्ग इट टुक टू मेड। सो गाइज इसे बनने में मैंने क्या बताया था, कितने टाइम लगे थे इसे बनने में, 2 years 11 days, आई मीन 11 month and 18 days कुछ लगा था इसे क्रिएट होने में हमारे किसे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। अब गाइस की आपको पूरा क्लियर हो। एंड गाइस हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा है गाइस। अगर आपने एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया, सो गाइस आप एक बार से दोबारा जाकर चेकआउट कर सकते हो, यू कैन चेक अगैन। एंड गाइस मैं यही कहूँगी कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बुक में देखने से ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप मुझे सुनोगे। सो ओके, ऑलराइट, सो गाइस लेट्स बिगिन टू आवर फर्दर वीडियो। ऑलराइट, लेट्स बिगिन डायरेक्टली टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। गाइज मैं इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं गाइज, उन्हीं की बेसिस पर मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगी। ऑलराइट, बिकॉज गाइज ज़्यादा हमारे पास पढ़ने का टाइम भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई गाइज मैं कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूँ। एंड गाइज मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं दोनों ही वीडियो को आपस में ज्वाइन कर पाऊँ। ओके, सो गाइज लेट्स बिगिन। 20 मिनट्स में ट्राई करते हैं इस चैप्टर नंबर 2 एंड 3 को भी कंप्लीट करने का। बाय द वे गाइज लेट्स बिगिन from now। रोशनी, so guys before completing this second number chapter guys मैं ये कहना चाहूँगी कि second number chapter से भी questions guys काफ़ी कम बन रहे हैं। so that's why guys मैं तो guys आपसे ये कहूँगी कि आपने
और फर्स्ट नंबर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, सो गाइस इट्स इनफ, बिकॉज अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है, सो गाइस इट्स इनफ फॉर अचीविंग पासिंग मार्क्स एंड फॉर अचीविंग गुड मार्क्स, गुड स्कोर, एटलीस्ट 70 to 80% स्कोर इन दिस चैप्टर. सो गाइज इट्स इनफ अगर आपने इतना कर लिया है तो, बिकॉज गाइज हमारे पास टाइम भी कम है गाइज. मैं तो गाइज यही कहूँगी कि आपने जितना भी किया है आप एक्स्ट्रा मत पढ़ो, बिकॉज देखो गाइज हमारे पास एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं है. बट ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जितना हमने पढ़ा है हम वही भूल जाएं. सो गाइज मैं तो गाइज यही कहूँगी अगर आपने एक ही चैप्टर कंप्लीट किया है, सो गाइज उससे ही ऐसा कंप्लीट करो ना कि वो चैप्टर आपके माइंड में फिट हो जाए. फिर चाहे अगर कोई आपको रात को जगा करके भी पूछे तभी आप भूलो ना. सो इस टाइप का गाइज आप ऐसे अपनी प्रैक्टिस करो. ओके, सो गाइज मैं तो गाइज आपको यही कहूँगी कि गाइज आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने पूरा फुल कंप्लीट किया है. सो गाइज इट्स इनफ, ये इनफ है गाइज. चैप्टर नंबर फर्स्ट शॉर्ट नोट्स में आएंगे. चैप्टर नंबर फर्स्ट हम इजीली कर लेंगे. लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे इजीली, नॉट अ बिग डील. वी हैव ऑप्शंस गाइज. लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 3 ऑप्शंस 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से हम कोई भी तो 2 कर लेंगे. वी हैव ऑप्शंस प्रेजेंट. गाइज मैं तो गाइज यही कहूँगी कि जितना आपने किया है इट्स इनफ. उसे ही आप अच्छे से रिवाइज करो 2 times 3 times 4 times गाइज रिवाइज करो. गाइज देखो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इट्स नॉट फॉर मी. आपको ये लग रहा होगा कि ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रही हूँ या फिर मुझे को पढ़ाने का शौक है. नो, आई एम नॉट यू कैन से जस्ट लाइक टीचर टाइप. बट गाइज मैं ये वीडियो एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट माई प्रैक्टिस. आई वॉन्ट टू सी माई प्रैक्टिस. गाइज मैंने जो ये वीडियो अभी जो बनाया है, यही वीडियो गाइज मैं कल मॉर्निंग में खुद अपनी वीडियो सुनूंगी. गाइज आपसे भी यही कहूँगी कि आप अपनी एक ऐसी कुछ करो, ऐसा वीडियो बनाओ जिससे कि आप खुद अपना वीडियो सुनो. इससे आपको पता होगा ना कि यहाँ पे क्या प्रैक्टिस है. आप देखो आपको ये लग रहा है कि मैं स्पेशली आपके प्रैक्टिस के लिए वीडियो बना रही हूँ. सुनो, मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो वीडियो में जो बना रही हूँ मैं खुद अपनी प्रैक्टिस को जज करने के लिए बना रही हूँ वीडियो. ऑलराइट, आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस गर्ल, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू. मेरा भी कल एग्जाम है, मैंने भी कंप्लीट किया. मैंने भी कोई फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं किया. मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितना मेरे लिए कंफर्टेबल है, जितना मैं कर सकती हूँ. आई एम एबल टू डू एज पर माई थॉट, एज पर माई माइंड, एज पर माई एनर्जी. ऑलराइट, in which chapter, in which topic I'm comfortable, I'm just doing only this, none other than more. मेरा कोई ड्रीम नहीं कि नहीं मुझे सारे कंप्लीट करने हैं. ऐसा तो नहीं है कि सारे आएंगे. वी हैव ऑप्शंस प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई. व्हाट्स द बिग डील गाइस? वी जस्ट ओनली डू only this whatever we have to do. I mean to say you can do only this point whatever come in your exam. Don't go external and don't become so much internal. देखो भाई ज़्यादा बाहर भी मत जाओ और ज़्यादा इसके अंदर घुसो भी मत. इट्स इनफ. जितना आपने किया है उतना इनफ है. कल पेपर है, रिवाइज करो 2 times करो 3 times करो. आप रात के 11-12 बजे तक पढ़ो, सो जाओ. टाइम कल मॉर्निंग में अपने 6 बजे उठो. चाहो तो एक बार रिवाइज करो, चाहो तो आप 5 बजे उठो. 5 AM गाइज यू कैन अवेक टुमारो एट 5 AM. आप 5 बजे उठो, कल प्रैक्टिस कर लो, एक बार रिवाइज कर लो. 2 times आपकी रिवीजन हो जाएगी. आप मेट्रो से आ रहे हो, बस से आ रहे हो. हमारे पेपर गाइज 9:30 में है, 9:30 में. 9 बजे तक भी अगर आप रिवाइज करोगे ना, इट्स इनफ. 9 8:30 तक भी करोगे तो गाइज बहुत है. 6 से 8:30 तक आपकी रिवीजन ऑलमोस्ट हो जाएगी गाइज. 2 times तो हो ही जाएगी रिवीजन. नहीं हो पाए तो 1 time तो गाइज हो ही जाएगी रिवीजन. कोई भी बच्चा होगा वो 1 time इजीली कर लेगा रिवाइज. 2.5 घंटे रहेंगे आपके पास. सो दैट्स व्हाई गाइज मैं गाइज यही कहूँगी जितना आपने पढ़ा है दैट्स इनफ. सो गाइज आप भी जाओ, रेस्ट करो एंड माइंड को फ्रेश रखो. ये नहीं कि आप रात भर जाग करके पढ़ रहे हो. अब इतने टाइम हमने कुछ नहीं किया तो एक दिन में हम क्या ही कर लेंगे बताओ गाइज. यस, एक दिन में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं और तो हम कुछ नहीं कर सकते. हम सब कुछ एक तरह से हम इसे बिल्कुल पढ़ तो नहीं सकते फुल अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में फिट तो नहीं कर पाएंगे ना. बुक की लैंग्वेज होती है एंड हमारे माइंड की लैंग्वेज वो खुद की लैंग्वेज होती है. सो दैट्स व्हाई. ऑलराइट गाइज, जितना आपने किया है इट्स इनफ. टेक केयर गाइज. बाय बाय. लेट्स मीट डायरेक्टली ऑन आवर एग्जाम सेंटर. एंड गाइज मैं कोशिश करूँगी और इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दूँगी. और आज मिडनाइट में मैं गाइज मिडनाइट से पहले ही कोशिश करूँगी. आई विल ट्राई टू अपलोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो. बट गाइज अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं भी अपलोड हो पाए, सो डोंट बी यू कैन से डोंट बी
what's the word? Yes, so don't be stressed. जितना आपने किया है it's enough. Bye guys, all the very best for your practice. I hope that you will do your best level. You will do at your level best. 100% गाइज अपना पूरा फुल 100% दो. जो भी लिखना है माइंड से लिखना है. ओके, माइंड में आपके सब कुछ है बट आप लिख नहीं पाते हो. दैट्स द मेन पॉइंट. एंड इसी की वजह से बच्चों की बैक लग जाती है, बैकलॉग. सो दैट्स व्हाई गाइज मैं यही कहूँगी, आपने जितना किया है इट्स इनफ. कल एग्जाम में जाओ, लिखो, पास हो, अच्छे नंबर लेकर के आओ, खुश हो, हैप्पी रहो. बाय बाय गाइज, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लाइफ. सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स गाइज, अगेन गाइज जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर अपलोड करूंगी. बट गाइज टाइम तो है मेरे पास अभी. सो मैंने सोचा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी में ऐड कर देती हूँ गाइज. अलग से वीडियो क्यों ही बनाना, डायरेक्टली अभी सब कुछ ऐड कर दो ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ. टेंशन फ्री आप भी रहो, टेंशन फ्री मैं भी रहूँगी, इससे कोई टेंशन नहीं रहेगा. सो गाइस जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में क्या आ रहा है, थर्ड चैप्टर में क्या आ रहा है, इसमें सारे टॉपिक्स गिवन है. यू कैन रीड, यू कैन have a look on this. So guys, now directly come on our most important question. Write a short note on rule of law. Guys, rule of law कौन सी चैप्टर का है? जैसे कि मैंने बताया था, रूल ऑफ लॉ हमारा फर्स्ट चैप्टर का है, जो कि हमें लॉ के रूल्स के बारे में, कानून के शासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. इन द सेंस कानून के शासन और लॉ का जो कानून का जो रूल है, क्या रूल है ये हमें बताना है. ओके, सो गाइस जैसे कि मैंने कहा था, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ is a very much important term as far as said. So guys, rule of law means क्या होता है? In the sense supremacy of the law. मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है गाइज वीडियो में, बट गाइज मैं आपको फिर भी मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में भी दे पाऊँ ताकि ये आपके लिए ईजी हो जाए. ओके, सो गाइज रूल ऑफ लॉ, गाइज हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक तरह का फुली ये बताता है दैट विच रेफर्स टू अ गवर्नमेंट guided by law and not in the sense guys it has been derived as per the you can say law of the constitution. The law of the constitution, their rule, their principles, their explanation. लॉ का क्या रूल है, कैसे हमें उसे जस्टिफाई करना है, ओके, किस तरह हमें उसे एक तरह से अपने लाइफ में एग्जैक्ट करना है. इन द सेंस guys you can say rule of a law according to DC means the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power of wide discretionary power. It means the inclusion exclusion of the existence of arbitrariness at the part of the government. एंड गाइस जैसे कि मैंने बताया कि रूल ऑफ लॉ ही हमें लॉ के रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है. ओके, सो गाइस इनके कुछ पार्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ, जज मोड कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है इनके बारे में? जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन. सो गाइस इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑल्सो मेन पार्ट ऑफ दिस. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बारे में बताता है एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्प्रिट के बारे में भी हम बात करते हैं इसमें. ओके, सो गाइस ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इट्स इनफ एंड द रूल ऑफ लॉ, द यू कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रेस्क्राइब द आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बारे में ये हमें बताता है. ऑलराइट, yeah, so guys it's enough for now. And guys now let's directly complete one more thing guys, exceptions of rule law. Guys you can read this also, it's very much important. Guys you can get this notes exceptions of to rule of law. जो मैं अभी बोल रही हूँ, जो लाइन में आपको अब जा रही है एक्सप्लेन करने, गाइज ये आप गूगल से निकाल सकते हो डायरेक्टली. इन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी आई गेस इट्स अवेलेबल. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डायरेक्टली कम ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर इंट्रोडक्शन क्या होता है गाइज? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुल एक्सप्लेन किया है, उसके एक एक पॉइंट को सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कहते हैं. और जैसे कि गाइज मैंने बताया उसके 3 ब्रांच होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. उनका क्या कनेक्शन होता है, क्या बताते हो गाइज हमें? गाइज वो हमें ये बताते हैं कि हमें कैसे रूल करना है, क्या क्या हमारे पास एक तरह से गाइज यू कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, फंडामेंटल बेसिक कोड स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर, ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन
कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन के बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं। मैंने फुली एक वीडियो गाइस मैंने आपको कई बार ये बताया है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी, आप उसे सुन सकते हो। ध्यान से गाइस सुनोगे तो आपको पूरा फुल क्लियर हो जाएगा। गाइस मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पूरी बात की है कि ये कैसे वर्क करता है, इसके असेंबली के बारे में, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में बात की हमने, BN राव के बारे में बात की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात की है हमने, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में भी गाइस हमने बात की है सारी वीडियो में। सो गाइस गो फास्ट एंड वॉच द वीडियो बिकॉज दिस वीडियो विल बी गोना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट, द एनालाइज पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो गाइस इस पॉइंट पे गाइस यू कैन रीड दिस फ्रॉम योर बुक, यू कैन रीड दिस फ्रॉम एज पर द ऑनलाइन मेथड, ऑनलाइन सिस्टम पे भी गाइस आप ये अवेलेबल है, यू कैन गो डायरेक्टली एंड रीड दिस गाइस। हियर दीज आर सम शॉर्ट नोट्स गाइस, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरल रिपब्लिक एंड सोवरेनिटी। सो गाइस ये चारों पॉइंट्स जो हमारे आने वाले हैं शॉर्ट नोट्स में गाइस, इनमें से 2 एटलीस्ट 1-2 तो आएगा ही आपके एग्जाम में, इट्स माय बेट गाइस। एंड ये चारों ही हमारे जो पॉइंट्स है, ये चारों हमारे फर्स्ट लेसन के ही पॉइंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स फर्स्ट पार्ट का है, और सेक्युलरिज्म भी फर्स्ट चैप्टर से है, फर्स्ट यूनिट से है, फेडरल रिपब्लिक भी फर्स्ट यूनिट से ही है, एंड सोवरेनिटी भी फर्स्ट यूनिट से ही है। इन द सेंस गाइस हमारे जो शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट से ही आ रहे हैं। सो गाइस यू कैन लर्न दिस वेरी इजी, इट्स वेरी मच इजी टू लर्न, इजी टू राइट, इजी टू achieve your marks, achieve your goals. Next our question is critically discuss the idea of social justice. Social justice के ऊपर सामाजिक न्याय के बारे में गाइस पढ़ना है, easily आप पढ़ लोगे, it's not so important, it's important actually, not so hard. Discuss the fundamental duties provided in the Indian Constitution. Indian Constitution में fundamental duties भी provided हैं, so उनके बारे में गाइस आप एक बार देख लेना होगे। क्रिटिकली डिस्कस द आइडिया ऑफ द सोशल जस्टिस के बारे में, इसे भी आप देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार। डिस्कस फंडामेंटल इट प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस क्वेश्चन को भी गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ऑल्सो। एंड गाइज मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं इस क्वेश्चन आंसर भी साथ में अगर अपलोड कर पाई, सो आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। बाय द वे डिस्कस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड ऑल। सो गाइज दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं गाइज अपने इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में। गाइज लगता तो नहीं है वैसे मैं और कोई वीडियो बना पाऊंगी, बट अगर मैं बना पाई सो इट्स वेरी मच अप्रिशिएट टू मी, अप्रिशिएट टू यू ऑल्सो। सो गाइज टेक केयर गाइज, बाय बाय, ऑल द वेरी वेरी मच बेस्ट टू यू फॉर योर टुमारो एग्जाम। मेरा भी एग्जाम है, आपका भी एग्जाम है, मिलते हैं सेंटर पे, हो सकता है हमारा सेंटर एक हो सकता है हमारा सेंटर अलग अलग हो, नो एनी प्रॉब्लम गाइज। आप ये वीडियो देख रहे हो, इट्स इनफ फॉर मी। थैंक यू वेरी मच गाइज। कमेंट में ऑल द वेरी बेस्ट जरूर लिखना अपने दोस्तों के लिए, खुद के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, अगर चाहो तो you